Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad, and today I have covered a lecture on in software engineering, that is topic is IEEE standards for SRS. In previous lecture I have covered a few introduction of the SRS, software requirement specification, but international organization IEEE give me some format of SRS and worldwide accepted. Actually this format is worldwide accepted, maximum IT industries adopt this format and few companies modified accordingly, our understanding and our requirement, right. But what is the IEEE standard format of the SRS? Before that we will discuss today ki what is the difference between requirements and SRS, right. So, okay. Technically agar speaking, okay, we are technically speaking what? Wait, okay. If we are technically speaking, requirement does not equal to specification. What is mean by that? When you starting your first phase, that is called feasibility study, at that time you meet your client stakeholders with the multiple ways. Maybe you plan some interviews, some open debates, some group discussions, some surveys, some questionnaire rounds and many more, right. According to these procedures you collect the requirement from your stakeholder and client and customer maybe, right. These are the requirements. Actually you gather the requirement from these processes from your client, right. After that you follow the requirement engineering processes, right, inception, elicitation, etc. In short में अगर समझें तो first of gather the requirement, collecting the requirement from your client and analyzing the requirement, after that refining your requirement and specifying your requirement. So, when you are going for the last stage of the requirement, that is called process, that is called specification, specify your requirement. मतलब क्या है, requirement gather करके जो आपने requirement collect करी, that is not a SRS. difference है दोनों में. और आप मल्टीपल टाइम्स आपने विजिट करा कस्टमर से मीटिंग करा या सर्वेज करा मल्टीपल वेज से, जो रिक्वायरमेंट गैदर होके आई एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज नॉट SRS. SRS इज व्हाट बेसिकली, that is specify after the analyzing refinement what document you produce, that is called BRS, that is called BRS is part of requirement, but SRS is some technical document, right, developed by the technical team, not for the business analyst. Okay. तो रिक्वायरमेंट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कस्टमर एंड सप्लायर. अब देखिए यहां पे किसका रोल आएगा, BA का, बिजनेस एनालिस्ट का, BA फिर व्हाट, बिजनेस एनालिस्ट. और इस वाले प्रोसीजर का आउटकम क्या होगा, BRS, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस लेक्चर्स. अगेन व्हेन these document come into picture, then your technical team again working on that BRS and after that making one more document that is called SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं. आफ्टर द मेकिंग द BRS, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो पूरा हर एक फंक्शनैलिटी व्हाट एवर फीचर्स यू कमिटेड बाय द बिजनेस एनालिस्ट टू द कस्टमर, उस पर सारा चेकलिस्ट करा के फिजिबिलिटी चेक करेगी, क्या क्या सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन द SRS. मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट डू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन SRS, व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट डू. बट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ BRS, ये किसके किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जो डॉक्यूमेंट है वो कस्टमर एंड सप्लायर के बीच में है, राइट. बट जो स्पेसिफिकेशन है व्हाट द सॉफ्टवेयर डू, वो टेक्निकल टीम के पास आएगा और टेक्निकल टीम आगे फर्दर उस पर वर्क करेगी, डेवलपमेंट करेगी, इंप्लीमेंटेशन करेगी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, राइट.
BRS का काम कब आएगा? जब हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट, तो सारा रिलीजिंग प्रोसेस में BRS के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आप आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट। तो रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट इन द SRS, दैट इज द कॉस्ट, डिलीवरी डेट्स एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर एटसेट्रा। SRS में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं? कॉस्ट नहीं होती है कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की, वो SRS में कभी मेंशन नहीं होती है। डिलीवरी डेट्स क्या हैं, वो SRS में मेंशन नहीं होती हैं। वो किस में होगी? BRS में होगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, राइट। या कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा, कंपनी टू कंपनी में भी वेरी कर सकता है, राइट, बट SRS में नहीं होंगी। एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, मैं आपको बताया कि जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के जो क्राइटेरियाज हैं, जो कमिट कर रखा है बिजनेस एनालिस्ट में, किसमें? सप्लायर से, क्लाइंट से, ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब प्रोजेक्ट आपको विन करते हैं मतलब कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है डेवलप करने के लिए, राइट, कंपनी को। ये सारी चीज़ें आपके SRS में नहीं होंगी, बट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में होंगी। दैट इज डिफरेंस एक्चुअली। ये की पॉइंट है, SRS और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंस समझिए, सेम नहीं है दोनों, थोड़ा डिफरेंस है, राइट। यूज़ ऑफ SRS बेसिकली, ओके, डिज़ाइनिंग पर्पज़ में। कौन सी डिज़ाइनिंग? अभी हम यहाँ सारी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, राइट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड वैलिडेशन। व्हाट इज़ द वैलिडेशन? बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब कोडिंग फेज में आ जाते हैं, चाहे कोई भी आप SDLC यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आ जाते हैं, इन दैट केस जो एग्जीक्यूटेबल कोड्स हैं, जो कि मतलब वर्किंग सॉफ्टवेयर हैं, वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, उसको आप क्रॉस चेक करते हैं विद द टेस्ट केसेस, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केसेस, राइट, कि वो वैलिडेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट आई थी, जो डेवलप किया गया, वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, रन हो रहा है कोड या नहीं, वही आउटकम आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड थे या नहीं, क्या डिफरेंस है, क्या फ्लक्चुएशन है, या कुछ एरर्स हैं, या बग्स हैं, या डिफेक्ट्स हैं, या कोई फॉल्ट है या फेलियर है। बेस्ड ऑन दैट कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम हैं। अगेन एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं। इफ दैट इज पार्ट ऑफ टेस्टिंग एक्चुअली, मे बी डेवलपर साइड, मे बी टेस्टिंग टीम by doing by the टेस्टिंग टीम। बट चेक क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है एंड एक्चुअल आउटपुट आप रन करा के देखते हैं। दैट इज द वैलिडेशन एक्चुअली, कि रन करा के देखा आपने, दैट इज वैलिडेट करा आपने, राइट। तो वैलिडेशन किसके थ्रू होता है? उसमें हेल्प कौन करता है? SRS। एंड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, रियली कहीं कहीं पे होता है क्या कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट भी मेंशन होता है, राइट। एंड IEEE फॉर्मेट की अगर हम बात करें 830 की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ SRS? बेसिकली द SRS मस्ट बी करेक्टली डिफाइंड ऑल द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, बट नो मोर। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, वेरी कंसाइज, स्पेसिफिक, है ना, कंप्लीट, करेक्ट, अनएम्बिग्यूअस, ये सारी चीज़ें SRS में होनी चाहिए, right. And the SRS should not desirable design, verification or project management details except from the requirement design contents, right. अब ये कुछ फॉर्मेट है, किसका है? IEEE has established guidelines and standard for organizing a software। तो ये सारा किसके लिए है? IEEE का फॉर्मेट है, राइट। इसमें क्या है? ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, IEEE फॉर्मेट ऑफ SRS, राइट। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनस एंड एब्रीविएशन, रेफरेंसेस एंड ओवरव्यूज। इसको देख ले, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। कि मतलब जैसे आप एजुकेशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए, प्रॉपर लाइव क्लासेस होनी चाहिए, असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, मार्किंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये ओवरऑल इन शॉर्ट में विद इन 2 or 3 लाइन 4 लाइन में होगा पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड द ऑनलाइन एजुकेशन टू योर स्टूडेंट और एनी अदर स्टेक होल्डर्स, राइट। दैट इज सिंपल पर्पस। एंड स्कोप, अब स्कोप क्या है? किसका स्कोप भी डिसाइड होता है हर प्रोजेक्ट का। जैसे बैंकिंग डोमेन का प्रोजेक्ट है, अगर वो क्या है, स्पेशली जो उस बैंक के क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं,
जो बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, ओनली फॉर दैट क्लाइंट कोई सॉफ्टवेयर बनेगा, तो उनका स्कोप, उनकी फंक्शनलिटी उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की ही बात कर लें, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कोई बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं, इन दैट केस स्कोप क्या होगा कि वो कितने ईयर्स के लिए है। जैसे बायजूस हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, बहुत सारे कंपनीज आज डेट में आ गई हैं ऑनलाइन, तो वो स्पेसिफिक डोमेन के लिए हैं, कोई चाइल्ड्स के लिए हैं, कोई ग्रेजुएशन पर के लिए हैं, कोई लोग मशीन लर्निंग AI पे ट्रेनिंग एंड एक्रेडिटेशन दे रहे हैं, कुछ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, ये आने वाले फ्यूचर में आने वाली हैं, बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्कोप चेंज होता रहेगा। जब नई पॉलिसी भी आएगी तो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग है कि आप किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगेन ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्कोप चेंज होगा ना, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप पूरी जब रिक्वायरमेंट प्रॉपर क्लियर हो जाएगी तो आप ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर का स्कोप डिसाइड कर पाएंगे। और पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ये किसमें होगा, इंट्रोडक्शन में। मैं स्टेक होल्डर के स्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, राइट, होल प्रोजेक्ट क्या करेगा, उसका स्कोप डिसाइडेड है, राइट। जैसे ABS या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट, तो अब AKTU है मान लीजिए, राइट, तो वो जो UP की जो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो उसका स्कोप क्या है, बेसिकली BTech, B.Pharma, MBA, M.Tech, PhD, ये सारे स्कोप डिसाइडेड हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चों को पढ़ाने लगेगा, राइट, प्ले स्कूल या 10th 12th का नहीं ना, तो उसका स्कोप के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्कोप आपके पूरे प्रोजेक्ट के डिसाइड होंगे, वो मेंशन होंगे इस डॉक्यूमेंट में। डेफिनेशन, एक्रेशन, एब्रीविएशन, आपने कोई डेफिनेशन अगर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देनी है या चेंजेस करने हैं, कोई आपने एब्रीविएशन अगर मान रखें, उसका डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि उसका मीनिंग क्या है। अगर रेफरेंसेस कोई आपके हैं, ओवरव्यूज़ अगर कोई हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति, तो वो भी आपको यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। एंड सेकेंड, दैट इज़ द फर्स्ट part, and second part is what, the overall description. What is that overall description? Basically the product perspective, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसके प्रोस्पेक्टिव से है सेकंड पार्ट। 2.1 इज व्हाट, सिस्टम इंटरफेसेस, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले उसके इंटरफेसेस क्या क्या हैं, किससे किससे कनेक्टिविटी होगी, किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, रैम रोम, हार्डवेयर, what is the system, basically configuration क्या है सिस्टम का, अब behind the what is server configuration also, what is the internet speed required, what are the interfaces needed actually for the running the software, and interfaces, system interfaces और software interfaces दोनों में difference है। जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होगा, मॉड्यूल में आपस में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और सिस्टम इंटरफेस मतलब जो सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल करेंगे उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी रन कराने के लिए। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम पे कंपैटिबल नहीं होते हैं, कई बार आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली विंडोज़ 10 के लिए इंस्टॉल करते हैं, या फिर लिनक्स या उबंटू के लिए इंस्टॉल करते हैं। अगर विंडोज़ वाला इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, वाई, बिकॉज उसका इंटरफेस नहीं डेवलप है, राइट। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस ड्राइवर्स उसके मैच करेंगे, राइट, तो इंटरफेस मेंशन होना चाहिए। हार्डवेयर इंटरफेसेस क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, है ना। कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, चैटिंग के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू, डिपेंड्स, मेनी मोर, है ना। VoIP इंटरनेट प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं, मे बी वॉइस कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, मे बी डिपेंड्स ऑन दैट। एंड मेमोरी कंस्टेंट्स, कितना स्पेस चाहिए आपको हार्ड डिस्क में या रैम में रन कराते समय, जब आप रन कराएंगे तो रैम में आ जाती है, राइट। उसके बिफोर आपको मतलब ओवरऑल स्पेस कितना चाहिए जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो एंड ऑपरेशंस क्या क्या हैं परफॉर्म करने हैं उसमें, जो कि ऑपरेशनल मैनेज करते हैं आप, और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी आप करते हैं बिफोर द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। एंड साइट एडॉप्टेशन रिक्वायरमेंट, जो भी आप डेवलप करने जाए उसके एडॉप्टेशन के पैरामीटर्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। अगेन दैट इज़ अवर प्रीवियस व्हाट इज़ 2.1 के सब पार्ट्स थे वो। 2.2 इज़ व्हाट, प्रोडक्ट फंक्शन, फंक्शंस क्या हैं प्रोडक्ट के, फंक्शनलिटी सारी डिसाइड करनी है। यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कितने टाइप्स के यूज़र हैं, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो फैकल्टीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल ईयर्स के हो सकते हैं, मल्टीपल कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई BTech में है, कोई एसेट्रा, दैट इज़ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दैट इन यूज़र जैसे चेंज होंगे, स्क्वाड क्राइटेरिया और स्कोप चेंज होते जाएंगे, राइट। तो यूज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट आप अच्छे सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। एंड कंस्ट्रेंट्स कोई हैं, देन in terms of limitation, in terms of security point of view, in terms of hardware constraint, in the software constraints, functionality constraints maybe, right, and database constraints हैं कोई, या compatibility का issue है कोई। assumption for dependencies, अगर कोई dependencies हैं तो how to overcome it, otherwise dependency को हम handle करेंगे। and apporting of the requirements, right, specific requirements क्या हैं, external interfaces,
फंक्शंस, राइट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है उसको हम प्रॉपर मेंशन करेंगे, एंड लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायर्ड क्या है वो हम मेंशन करेंगे प्रॉपरली, एंड डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं कोई अगर तो आर्किटेक्चर किस तरह का होगा, 3 लेयर आर्किटेक्चर है, 2 लेयर आर्किटेक्चर है, राइट, MVC आर्किटेक्चर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर पे कोई कंस्टेंट है तो देन यू हैव डिस्क्राइब्ड इन द SRS, एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स क्या हैं हमारे वो प्रॉपर मेंशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर कोई हैं तो कोई अगर रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट टाइम पे तो वो भी हम मेंशन करेंगे, या जहाँ पे क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना है अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है तो हम क्लाइंट को बताएंगे कि आपको ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या ये हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, देन ये सॉफ्टवेयर चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर अपना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा सिस्टम का, राइट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंस्टेंट भी आपको बताने पड़ेंगे। एडिशनल कमेंट्स अगर कोई हैं जो डेवलपमेंट टीम है, टेक्निकल टीम है, तो वो प्रॉपर SRS मेंशन होगा कि प्लीज़ डोंट, अगर आप एडिशनल करने मान लो आपने सिर्फ 4 फ़ोन के लिए आपका कोई सॉफ्टवेयर आपने टेस्ट करा है या सिर्फ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो आपको बताना है कि सिर्फ ये मैक और विंडोज़ पे ही चलेगा, लिनक्स पे नहीं चलेगा, तो डोंट ट्राई इट। तो अगर बनवाना है उसके लिए अलग से आपको देना पड़ेगा, राइट। जो भी आपके एडिशनल कमेंट्स हैं आपको मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि पता रहे, हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, मतलब वर्बली आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो चैलेंजेस हैं वो आपको वो भी बताने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंटली, और जो स्ट्रेंथ हैं वो भी बताने पड़ेंगे, जो कमियाँ हैं वो भी बतानी पड़ेंगी, है ना। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट अगर कोई चेंज होता है, कोई क्लाइंट बोलता है कोई चेंज करने के लिए, तो प्रॉपर मेंशन होगा, उसको प्रॉपर मैनेज होगा, उसके भी नए नए वर्जन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स, मल्टीपल रिव्यूज़ करके वैलिडेट करके डॉक्यूमेंट अप्रूवल के पैरामीटर्स भी डिसाइड होने चाहिए, एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी जो कोई अगर है तो वो लास्ट में 6 पॉइंट पे आएगी, राइट। Requirement validation, how to validate the requirement basically, and after the completion of SRS document we should like to check the document for, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है तो चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है, गलतियाँ होने के चांसेस हैं, राइट। तो अगर वो मल्टीपल टाइम रिव्यू हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट अच्छा हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का अगर स्पेसिफिकेशन का हमारा अच्छा हो जाएगा तो डेवलपमेंट में कमियाँ गलतियाँ कम होंगी जो डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा तो, राइट। तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं बेसिकली, तो कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ ये वर्ड, राइट। कंप्लीट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड कंफर्टनेस टू स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड IEEE सेट कर रखे हैं या इंटरनेशनल बॉडीज़ ने जो एफिलेट करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे ISO है, CM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स हैं, CMI लेवल्स हैं, लेवल 1 2 3 4 5, राइट। उन्होंने कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद कंफर्टेबल होना चाहिए इंडस्ट्री को, अदरवाइज प्रोसेस है दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग योर क्वालिटी, राइट, ऑफ योर सॉफ्टवेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉई ऑल्सो, राइट। एंड रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर रिक्वायरमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट है, एम्बिग्यूटी है, तो मल्टीपल टाइम ग्रुप डिस्कशन करके उसको इम्प्रूव करना है, ओके। एंड टेक्निकल एरर्स हैं कोई तो वो भी आपको मेंशन करके उसको इम्प्रूव करके फिक्स करानी है। एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसको रिमूव करना है, एंड क्लेरिफाई सर्टिफाइड दैट SRS डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट एंड सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी सिस्टम डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्ट SRS डॉक्यूमेंट ही हो रहा है। द रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज व्हाट, तो SRS डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, 3 की पॉइंट्स हैं जिसको आप वैलिडेट करते हैं प्रॉपर। आफ्टर वैलिडेशन इज व्हाट, लिस्ट प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको लिस्ट डाउन करते हैं और फिक्स करते हैं, राइट। एंड अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको जो कि नेक्स्ट अप्रूवल एक्शन है उसको आप लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये सारे तीनों चीज़ों को आप कंबाइन करके आप वैलिडेट करते हैं। आफ्टर दैट वैलिडेशन प्रोसेस के बाद क्या प्रॉब्लम्स उसको लिस्ट डाउन करके फिक्स करते हैं, और आफ्टर दैट अप्रूवल एक्शन लेते हैं, राइट। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज व्हाट, तो प्रॉब्लम एक्शन, रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, फाइंडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको अगेन उसको चेक करके अकोमोडेट करेंगे। एंड रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेक होल्डर मस्ट बी नेगोशिएट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, स्टेक होल्डर्स को रिजॉल्व करेंगे और नेगोशिएशन होगा उस पर। अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को हटाना है हमें या उसमें दोबारा डिस्कशन करना है। एंड सिक्योरिटी कोई इश्यूज़ हैं देन उसको ओवरकम करना है, सिक्योरिटी को प्रॉपरली हैंडल करना है, इससे कोई सिक्योरिटी ग्लीच वगैरह ना हो, है ना। वैलिडेशन टेक्निक्स क्या हैं बेसिकली, देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन टेक्निक्स बेसिकली, रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ एंड प्रोटोटाइपिंग। मैंने आपको बता चुका हूँ, रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस भी आपको बता चुका हूँ। मल्टीपल रिव्यूज़ हो सकते हैं, पेयर रिव्यू हो सकता है, टेक्निकल रिव्यू हो सकता है ना, बजट का रिव्यू हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेस हैं, मॉडल्स हैं इसके लिए।
एंड अगर आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप गो फॉर द प्रोटोटाइप, आप प्रोटोटाइप बनाएंगे और कस्टमर से वैलिडेट कराएंगे कि ये आप ऐसा ही सोच रहे थे, जैसा वर्किंग प्रोटोटाइप आप बनाएंगे मॉडल और उसको कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। अगर वो ओके है तो ठीक है, गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, अदरवाइज व्हाट द चेंजेस सजेस्टेड बाय द कस्टमर दैट इज अकोमोडेड इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप, है ना। आप उस चेंजेस को चेंज करके अगेन प्रोटोटाइप में मॉडिफाई करके कस्टमर से फीडबैक लेंगे और उसको अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट वर्जन में, करेक्ट। रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्लान है, प्लान करेंगे रिव्यू को करने का, कैसे कैसे कितने स्टेप प्लान होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट एसआरएस डॉक्यूमेंट करेंगे डिफरेंट रिव्यूइंग बॉडीज़ को, एंड आफ्टर दैट रीड डॉक्यूमेंट करेंगे वो लोग, फिर ऑर्गेनाइजिंग रिव्यू मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसका जो भी कमेंट्स जो सजेशंस हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स का कोई हो सकता है, क्लाइंट स्टेक होल्डर सारे ही हैं एक्चुअली, क्लाइंट टीम से हो सकता है, कस्टमर टीम से हो सकता है, एंड यूज़र के कोई फीडबैक सर्विस से आ सकते हैं, या फिर टेक्निकल टीम से कोई हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, तो सबके एक मीटिंग होगी। अकॉर्डिंग टू दैट जो सजेशंस आएंगे हम उसको फॉलो एक्शन लेंगे और रिवाइज डॉक्यूमेंट एसआरएस बनाएंगे जो कि कंप्लीट और बेस्ट होगा। एंड फ्यू चेकलिस्ट है जो कि हम क्या करते हैं बेसिकली कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट बन गया बाय दिस प्रोसेस, हमने रिव्यू भी कर लिया, हमने रिव्यू का प्लान करा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा टीम में, आफ्टर दैट रीड डॉक्यूमेंट करा, सबने टीम ने जिसको किया, मान लो मल्टीपल लोगों को आपने टीम में एलोकेट कर दिया कि आप रिव्यू करिए, है ना। मे बी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के अंदर क्लाइंट कस्टमर हो सकता है आपका, या टेक्निकल टीम में आपके प्रोजेक्ट लीड हो सकते हैं, टीम लीड हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हो सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट को रीड करके जो कमियां हैं, एम्बिग्यूटी है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर अंडरस्टैंड नहीं है, अनरिस्टिक कोई भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो उसको ओवरकम करा जाएगा और मीटिंग में और डिस्कशन के बाद वहाँ से जो भी एक्शन लिया जाएगा रिव्यू के बाद कि ये हटा दीजिए या ये ऐड कर लीजिए, ऑन दैट बेसिस जो कमेंट्स आएंगे फिर से आप एसआरएस को मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, नेक्स्ट वर्जन डॉक्यूमेंट होगा वो आफ्टर द रिव्यूइंग, एंड उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और कुछ प्रोसेस है चेकलिस्ट का, राइट। तो चेकलिस्ट कैसे करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपका बन गया है प्रॉपर फाइनल, उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एसआरएस सबको समझ में आना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एंड रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे लेंदी हो जाएगा और उसका वर्थ नहीं है कोई, और कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए स्टार्टिंग टू एंड, जो भी फॉर्मेट है जो कंपनी आपकी फॉलो कर रही है या IEEE फॉर्मेट है, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग होना चाहिए उसमें, जो भी फॉर्मेट है सारे इसका। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक रिडंडेंसी, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट जो भी है वो प्रॉपर मेंशन और क्लियर होना चाहिए, है ना। कंफर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है हमें, क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ऑल ईच एंड एवरीथिंग मेंशन प्रॉपरली, राइट। एंड ट्रेसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दैट सॉफ्ट एसआरएस डॉक्यूमेंट आपके मल्टीपल जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं 1 2 3 4 वट एवर डिसाइडेड बाय योर प्रायोरिटी एंड राइट, ऑन दैट बेसिस यू डिसाइडेड द ऑल द पैरामीटर्स, राइट, कि ट्रेसेबिलिटी आप ट्रेस कर पाएँ कि डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा कहाँ चल रहा है, राइट। देन व्हाट इज दैट, तो आपने क्या देखा कि रिक्वायरमेंट रिव्यू करेंगे प्रॉपरली हम, हाँ, रिक्वायरमेंट रिव्यू के बाद जो स्पेसिफाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो गो फॉर द प्रोटाइप। प्रोटाइप कब बिल्ड करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी, राइट। आफ्टर दैट go for the review process. What is the review process basically? Plan a review, that is important. अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर रखी है रिव्यू की तो जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं वो सारी रिमूव होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अगेन व्हेन यू प्लान द रिव्यू डॉक्यूमेंट, मतलब आप टाइम मेंबर्स को सेट करेंगे कि किसको किसको देना है, प्री प्लान करेंगे, टाइम पे आपको रिव्यू करके टाइम पे डॉक्यूमेंट आना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर सबके अपने कमेंट्स होने चाहिए। आफ्टर दैट रीडिंग द डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू मीटिंग, राइट। रिव्यू मीटिंग में क्या होगा बेसिकली, जो डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने उसको स्टडी करा है प्रॉपर, उस पर जो कमेंट्स आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और कौन से कमेंट्स ऐसे हैं, कौन से रिव्यू में जो चेंजेस बोले गए हैं या सजेस्ट किए जा रहे हैं वो कितने एक्सेप्टेबल हैं, या जो भी हमें रिमूव करना वो एक्सेप्टेबल है या सच में इतना नीडी है वो, तो हम उसे बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ऑन दैट पैरामीटर्स
वो डिस्कशन का टॉपिक होगा। आफ्टर दैट जो भी मीटिंग में सजेशन दिए जाएंगे, जो चेंजेस बोले जाएंगे, उसको हम प्रॉपर फॉलो अप एक्शन लेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट रिवाइज SRS डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा, फाइनल SRS डॉक्यूमेंट, राइट। आफ्टर मल्टीपल रिव्यूज़ हो सकते हैं, मे बी 1 रिव्यूज़ में हो जाए, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, राइट। दीज आर द चेकलिस्ट एज आई टोल्ड यू। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, देन फाइनल करेंगे। जो भी रिव्यू कमेटी होगी आपकी डॉक्यूमेंट के रिव्यू करने की, टेस्ट करने की, वो सारे क्या करेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी देखेंगे, प्रॉपर रीडेबल है कि नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है ना, प्रॉपर चीज़ें क्लियर वेरीफाई है, क्लियर मेंशन है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट सारी, है ना, रिडंडेंसी प्रॉपर कहीं तो नहीं आ रही, बार बार कोई चीज़ रिपीटिशन हो रहा है, कंप्लीट है कि नहीं, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना, एम्बिग्यूटी तो नहीं है कहीं, मल्टीपल टाइम कोई चीज़ फंक्शनलिटी मल्टीपल टाइम बोली जा रही है कि चैटिंग करनी है, फेस वो अटैच करना है, ऐसा मल्टीपल डिपेंड करता है कि कई बार आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल जगह सिक्योरिटी लगा देते हैं। नहीं, सिक्योरिटी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं लगाना, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स हैं या टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं या मैनेजरियल कंस्ट्रेंट्स हैं या ट्रैकिंग में कोई इश्यूज़ आने वाले हैं, लग रहा है आपको कि मे बी, या फिर कोई रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी ऐसे लग रही है कि इसमें दिक्कत होगी, ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रेंट से आपको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कोई सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, चाहे वो डेवलपर साइड पे हो चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो, मेंशन इन द SRS, राइट, प्रॉपरली। एंड कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को कंफर्मेशन करना कि हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होने ही चाहिए, राइट, जिससे क्या होगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। एंड ट्रेसिबिलिटी, ईच एंड एवरी मॉड्यूल कितना बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, टाइम लग रहा है, वो सारा ट्रेसिबिलिटी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। ओके, आई थिंक हमने सारा SRS का कवर कर लिया है। थैंक यू।